now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind. Okay, तो इसमें हम modern methods पढ़ रहे हैं ऑफ हीलिंग. तो अब नेक्स्ट है मेंटल मूवी मेथड. अभी तक हमने बहुत सारे पढ़े हैं. विजुअलाइजेशन पढ़ा था कल, है ना. उसके पहले हमने वो पासिंग अवे मेथड. तो अलग अलग तरीकों से मेंटली सोच के, मन की आंखों से विजन्स बना के, इमेजेस बना के आप अपना ब्यूटीफुल फ्यूचर देखो. मत बात करो पास्ट की, ठीक है. ये क्रिएशन का प्रोसेस में अगर आप पीछे से बंधे हुए हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे. सो अब नेक्स्ट मेंटल मूवी मेथड एंड क्षितिज भाटिया इज रीडिंग फॉर अस. आई एम सो हैप्पी बच्चे पढ़ते हैं तो. Good morning. गुड मॉर्निंग. Uh, the mental movie method. The Chinese say a picture is worth 1,000 words. William James, the father of American psychology, stressed the fact that the subconscious mind will bring to pass any picture held in the mind and backed by faith. Act as though I am and I will be. A number of years ago, I was in the Middle West lecturing in several states, and I desired to have a permanent location in the general area from which I could serve those who desired help. I traveled far, but the desire did not leave my mind. One evening, while in a hotel in Spokane, Washington, I relaxed completely on a couch, immobilized my attention, and in a quiet, passive manner imagined that I was talking to a large audience, saying in effect, I am glad to be here. I have prayed for the ideal opportunity. I saw in my mind's eye the imaginary audience, and I felt the reality of it all. I played the role of the actor, dramatized this mental movie, and felt satisfied that this picture was being conveyed to my subconscious mind, which would bring it to pass in its own way. The next morning, on awakening, I felt a great sense of peace and satisfaction, and in a few days' time, I received a telegram asking me to take over an organization in the Midwest, which I did, and I enjoyed it immensely for several years. The method outlined here appeals to many who have described it as the mental movie method. I have received numerous letters from people who listen to my radio talks and weekly public lectures telling me of the wonderful results they get using this technique in the sale of their property. I suggest to those who have homes or property for sale that they satisfy themselves in their own mind that their price is right. Then I claim that the infinite intelligence is attracting to them the buyer who really wants to have the property and who will love it and prosper in it. After having done this, I suggest that they quiet their mind, relax, let go, and get into a drowsy, sleepy state which reduces all mental effort to a minimum. Then they are to picture the check in their hands, rejoice in the check, give thanks for the check, and go off to sleep feeling the naturalness of the whole mental movie created in their own mind. They must act as though it were an objective reality, and the subconscious mind will take it as an impression, and through the deeper currents of the mind, the buyer and the seller are brought together. A mental picture held in the mind, backed by faith, will come to pass. या तो इसमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं. डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने सबसे बड़ा चाइनीज प्रोवर्ब लिखा हुआ है दैट एन इमेज इज मोर देन 1,000 वर्ड्स. मतलब शब्द से ज्यादा इमेजेस की वैल्यू होती है ना. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड, ये मैं लगातार आपको बताती आ रही हूँ कि शब्दों से ज्यादा इमेजेस होती हैं. अगर आप कोई भी इमेज देख रहे हो ना बार बार लगातार, वो आपकी जिंदगी में वैसा ही हो जाएगा, है ना. मैंने बहुत, जितने भी मेरे ड्रीम्स अचीव हुए हैं वो सारे मैंने बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इमेजेस देखी थी उनकी, दैट दिस इज हैपनिंग नाउ. ओके, वेदर चाहे वो कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें, इवन इफ इट इज हाउ डू आई टेल यू, लाइक जैसे वो जो इमेज होती है, आई वांटेड अ सर्टेन अमाउंट इन माय बैंक बैलेंस, लाइक इन माय सेविंग. सो व्हाट आई वुड डू इज दैट हम लोग कभी भी खर्चा करते हैं तो हमारे पास बैंक की नोटिफिकेशन आती है टेक्स्ट मैसेज के रूप में, एसएमएस आता है कि सो एंड सो मनी स्पेंट एंड कंबाइंड अवेलेबल बैलेंस इज सो मच, है ना. ये वाला मैसेज आता है हम सबको. तो वो जो कंबाइंड अवेलेबल बैलेंस को
मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट कर दिया जिसमें सिर्फ मैं हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सिर्फ मैं रहती हूँ, उसमें सारी मेरी अच्छी अच्छी चीजें होती है, मेरे वर्कआउट होते हैं कि कौन से वीडियोस, मुझे कहाँ कहाँ पे जाना है, अगर गोवा में कितने 5 रेस्टोरेंट्स में मुझे खाना है तो उनके नाम होते हैं वहाँ पे, कि यहाँ पे ये वाला फूड अच्छा है, वहाँ पे मस्टर्ड करी बहुत अच्छी है, इस तरह करके। तो उस ग्रुप में सिर्फ मेरी फेवरेट चीजें जो मुझे करना है, मेरे अपने खुद के एफर्मेशन, ये सब मेरी ड्रीम लिस्ट ये सब होती है। तो मैंने अब व्हाट आई वुड डू इज दैट मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ जो ये कंबाइंड अवेलेबल बैलेंस वाला जो मैसेज आता है, और उसको मैं एडिट कर देती हूँ, बिकॉज कॉपी पेस्ट जब आप करते हो तो वो एडिटेबल हो जाता है ना, आप उसको एडिट कर सकते हो। तो उसमें एडिट करके मैंने ये वाला अमाउंट डाल दिया था जो मेरा ड्रीम अमाउंट था, सपने वाला। ठीक है, और उसमें अपने वाले ग्रुप में मैं बहुत ज्यादा विजिट करती हूँ, मैं सबसे ज्यादा उसमें उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, बिकॉज उसमें सारी वो इमेजेस होती है, या ऐसी चीज लाइक अ फ्लैट एब की पिक्चर होती है, लाइक आई लव टू हैव वेरी फ्लैट एब्डोमेन एंड वेरी टोन, तो उसमें फ्लैट एब्स की पिक्चर होगी, उसमें वो कंट्रीज के नाम होंगे, उसमें मेरा वो पर्टिकुलर अवार्ड होगा। तो उसी में मैं ये भी डाल देती हूँ दैट माई अवेलेबल बैलेंस इज सो मच, एडिट करके अपना जो ड्रीम अमाउंट है ना वो करके, एंड हैव ओवर अचीव्ड इट, मतलब कहीं ज्यादा उसको देख देख के। तो इस तरह ये मतलब होता है कि इमेजेस इज मोर देन 1,000 वर्ड्स। सो जो चित्र, जो इमेजेस आप अपने दिमाग में होल्ड करते हो वो आपके बहुत जल्दी आएंगे। तो आप वर्ड्स तो वैसे भी कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कन्वर्जन फैक्टर होता है उसमें, जैसे हमारा रियलिटी फिजिक्स में भी होता है ना कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर आप सीधे चित्र ही डालो ना, आप उसी को मतलब आंख बंद करो और वो फोटो देखो जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। तो मेंटल मूवी मेथड में वो कह रहे हैं कि चल चित्र है ये हिल रहा है, यू कैन महसूस, आप महसूस कर सकते हो उसका उसका आवाज, लाइक क्या है, एसी की ठंडक, ये सारी चीजें भी। तो इसमें उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला वाला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि वो मिडिल वेस्ट में थे, यूरोप के अराउंड, वहां पे उनको अपना परमानेंट एक ऑफिस चाहिए था डॉक्टर जोसेफ मर्फी को, जिसमें बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम हो और जिसमें वो अपने लेक्चर्स ले सके और लोगों को बेनिफिट कर सके। तो उनको ये लग रहा था कि मतलब कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं। उन्होंने स्लीपी ड्राउजी स्टेट, आर्म चेयर में बैठे, आंख बंद की, और उन्होंने ये विजुलाइज किया कि एक हॉल है बहुत बड़ा सा, उसमें वो स्टेज है और फिर बहुत सारे लोग हैं और पूरा हॉल पूरा भरा हुआ है वहां पे। ये किया, और कुछ दिनों के बाद ही किसी ए पर्टिकुलर पर्सन का फोन आया, उन्होंने कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी ऐसी, आप इस हॉल को लेना चाहोगे, एंड उनको अपनी जगह बिल्कुल उस हिसाब से मिल गई। फिर दूसरा पैराग्राफ में एग्जाम्पल बताया हुआ है वो कैसे पर्सन को बाइंग एंड सेलिंग के बारे में, जिसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, जिसको प्रॉपर्टी देनी है, तो स्पेशली जिनको बेचनी है, क्योंकि उन्होंने पूरा वो बताया है कि अपने आराम से शाम के टाइम, रात के टाइम सोने के पहले आप स्लीपी ड्राउजी स्टेट में रहो। वो तो शाम के टाइम हम वैसे भी स्लीपी ड्राउजी स्टेट में ही होते हैं, है ना। गैजेट्स अगर यूज नहीं किए हैं तो अपने आप आपका अल्फा स्टेट आ जाता है उसमें। अगर गैजेट या ब्लू लाइट आप यूज करते हो तो ऑप्टिक नर्व आपकी स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी, है ना। वो ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि वो ऑप्टिक नर्व, उस नर्व, वो वाली नर्व जिससे हमको विजन आता है। सो जब भी हमारे रेटिना पे ब्लू लाइट आती है, ब्लू लाइट बहुत हार्मफुल होती है, गैजेट्स की होती है, जैसे लैपटॉप की, फोन की, टेलीविजन की, इनको ब्लू लाइट बोलते हैं। तो ये जब ब्लू लाइट ऑप्टिक नर्व पे, तो वो हमारे पीनियल ग्लैंड को ब्लॉक कर देती है, जहां से हमारा स्लीपिंग हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से आपको नींद आती है ना। मेलाटोनिन हमारा स्लीप हार्मोन होता है और वो हमारे पीनियल ग्लैंड से निकलता है। तो पीनियल ग्लैंड यहाँ पे पीछे ब्रेन स्टेम पे होता है। तो अगर ऑप्टिक नर्व हमारी स्टिमुलेटेड रहती है तो हमको नींद नहीं आती है। तो इसीलिए बार बार ये बोलते हैं कि वैसे भी हम लोग बताते हैं कि सोने के पहले 1 घंटा पहले बंद कर दो अपने सारे गैजेट्स, नहीं तो पीनियल ग्लैंड नहीं निकलेगा, है ना। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलेगा और आपको नींद आने में दिक्कत आएगी। सो सोने के पहले ही कह रहे हैं कि स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जाओ, और आप इमेजिन करो कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वेरी हैप्पीली आपकी बिक गई है एट द प्राइस जो आपको चाहिए था, उस रेट पे बिकी है। और जो पर्सन जिसको बिकी है, दैट पर्सन लव्स, और वो प्रॉपर्टी उसके लिए बहुत लकी है ना। और हमारी ये विश होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी इसको खूब फले,
खूब फले का मतलब होता है कि ये प्रॉपर्टी इसके लिए बहुत बेनिफिट्स लेके आए, इसके घर में संपन्नता आए, खुशियां आए, और बहुत लकी हो, जो बोलते हैं ना, लकी लकी हो, ये वाला, दैट वे। सो इस तरह से, और इमेजिन करो कि आपने बड़े अच्छे से उसको, मतलब ये मेंटल मूवी मेथड है ना, कि आपने उसको प्रॉपर्टी बेची, और उसने बड़े अच्छे से, बहुत प्यार से, उसका हंसता खिलता चेहरा देखो, दैट ही इज वेरी हैप्पी टू रिसीव इट, और फिर उसने चेक का अमाउंट, इमेजिन दैट आपने वो चेक ले लिया है, और बहुत सारा थैंक यू बोल के फिर आप रात को सो जाओ। तो ये आपने इमेजेस देखी थी सोने के पहले, हम देखेंगे सोने के पहले की क्यों सारे इमेजेस फ्यूशन हो जाती है, वो सही सत्य हो जाता है ना, दैट ब्रिंग्स इट कम्स इनटू अ 3D रियलिटी। सो इस तरह से अगर हम करेंगे, तो ये तो इसमें ये मेथड दिया हुआ है, आपको जो करना है आप वो वाला करो। आप ये देखो कि आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है एंड यू आर वेरी वेरी हेल्दी। आप ये देखो दैट आपका बॉडी वेट आइडियल हो गया है। आप ये देखो दैट आप उस वेकेशन पे अपनी फैमिली के साथ गए और आप बहुत मजे कर रहे हो, है ना। आप कुछ भी देखो, ये तो आपकी मर्जी है, मेंटल मूवी उसकी पूरी पिक्चर बना लो कि किस तरह से आप इंटरनेशनल डिपार्चर्स लिखा हुआ है, उस एयरपोर्ट पे गए, आपने इमिग्रेशन क्लियर किया, है ना। ये उस साउंड को भी, जो ठक लगता है, ठप्पा लगता है उस पे, पासपोर्ट पे, उस साउंड को भी आप अपने कानों से सुनो। और फिर उसमें किस तरह आप सिक्योरिटी चेक के बाद आप जा रहे हो, जो भी, है ना, एयरपोर्ट पे ब्यूटीफुल स्टोर्स ऑन बोथ द साइड्स, बहुत ब्राइट लाइट है, बोर्डिंग किया आपने, और कितना मजा किया, पूरी मूवी क्रिएट कर लो उसकी, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, है ना, जैसे फीचर होता है, द बिग फीचर फिल्म। सो उस तरह का मूवी आप क्रिएट करो अपनी जिंदगी की। वही अगर आपको घर खरीदना है, ये सब मत सोचो पैसे कहाँ से आएंगे, फिर गड़बड़ हो जाती है। जैसे हाउ में चले जाते हो ना, आप इंजॉय करो फाइनल प्रोडक्ट, है ना। डोंट वरी अबाउट, कुछ पता नहीं होता है यूनिवर्स कहाँ से क्या करके देते हैं, कहाँ से क्या हो जाता है, क्या से क्या बदल जाता है। ये यही तो ऑर्केस्ट्रेशन है ब्रह्मांड की शक्तियों का, जिनको हमने अभी तक इतना अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है, क्योंकि हम हमेशा हाउ सोचते हैं कि आज तो इतना आ रहा है, इतना कैसे आएगा, 2 करोड़ रुपए घर कैसे। डोंट थिंक अबाउट ऑल दैट, आप फाइनल प्रोडक्ट को एंजॉय करो, है ना। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप जॉब एंजॉय करो मेंटल मूवी में। ये मत सोचो कहाँ से ये वो, कुछ नहीं, पता नहीं कैसे वो पलटने में ना 1 सेकंड में नहीं लगता है। सो एंजॉय लाइफ, अपने फाइनल प्रोडक्ट को देखो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी को अपना ऑडिटोरियम चाहिए था क्या, इन्होंने वरी किया, है ना। जिस इंसान को प्रॉपर्टी सेल करनी थी, उसने ये सोचा बायर कब आएगा, आज तक तो आया नहीं, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, या तो फिर उसी में रहो अब उसी रट में रहेंगे तो जिंदगी के दरवाजे आगे नहीं खुलेंगे। अगर जिंदगी के आगे दरवाजे खोलने हैं, तो हमारा मेंटल एटीट्यूड प्रोग्रेसिव होना चाहिए। हाउ हमारा काम होता ही नहीं है। अगर आप भगवान का काम अपने हाथ में ले रहे हो, तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, है ना। हमारा काम है हमारा फ्यूचर क्रिएट करना, बस उसी पे फोकस करो। बी लीज बॉदर्ड अबाउट कि कल कल तक कैसा था, पास्ट हो गया है, वो चला गया है, हम आगे ये बुटॉन टेक्निक पढ़ते हैं एक बार। हाँ जी। The Boudoir Technique. Charles Boudoir was a professor at the Rousseau Institute in France. He was a brilliant psychotherapist and a research director of the New Nancy School of Healing, who in 1910 taught that the best way to impress the subconscious mind was to enter into a drowsy, sleepy state, or a state akin to sleep in which all the effort was reduced to a minimum. Then, in a quiet, passive, receptive way, by reflection, he would convey the idea to a subconscious. The following is his formula. A very simple way of securing this impregnation of the subconscious mind is to condense the idea, which is to be the objective of suggestion, to sum it up in a brief phrase which can be readily graven on the memory, and to repeat it over and over again as a lullaby. Some years ago, a young lady in Los Angeles was engaged in a prolonged, bitter family lawsuit over a will. Her husband had bequeathed his entire estate to her, and his sons and daughters by a previous marriage were bitterly fighting to break the will. The boudoir technique was outlined to her, and this is what she did. She relaxed her body in an armchair, entered into the sleepy state,
and as suggested, condensed the idea of her need into the phrase consisting of 6 words easily graven on the memory. It is finished in divine order. The significance to her of these words meant that infinite intelligence operating through the laws of her subconscious mind would bring about a harmonious adjustment through the principle of harmony. She continued this procedure every night for about 10 nights. After she got into a sleepy state, she would affirm slowly, quietly, and feelingly the statement, "It is finished in divine order," over and over again, feeling a sense of inner peace and an all-pervading tranquility. Then she went off into her deep, normal sleep. On the morning of the 11th day, following the use of the above technique, she awakened with a sense of well-being, a conviction that it was finished. Her attorney called her the same day, saying that the opposing attorney and his clients were willing to settle. A harmonious agreement was reached and litigation was discontinued. Yeah. So this is how much we'll read. Thank you so much, Kshitij. Thank you for reading so beautifully. Thank you. Thank you. सो ये वाला बदाऊं मेथड जो है ये प्रोफेसर थे बदाऊं मेथड उनके नाम पे ही है उन प्रोफेसर का नाम था जो एक साइकोथेरेपिस्ट थे तो ये बताते थे जो हम एफर्मेशन जिसको बोलते हैं ना ये वही लेकिन एफर्मेशन की टेक्निक ऐसी नहीं थी कि आप चलते चलते बोल रहे हो या खाना बनाते बनाते बोल रहे हो ये इनकी टेक्निक थी कि आप सेम सेंटेंस बार 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 रिपीट कर रहे हो जिसको हम एफर्मेशन बोलते हैं बट इस तरीके से स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जाके है ना और स्टेट अकिन टू स्लीप जिसको सैट्स बोलते हैं ना SATS स्टेट अकिन टू स्लीप मतलब आप पूरी तरह से अल्फा थीटा स्टेट में चले जाओ आराम से बैठ के पूरी बॉडी को रिलैक्स करो आपको अपने आप को बोलना होगा माय टोज आर रिलैक्स मेरे पैर रिलैक्स्ड है मेरा पेल्विस रिलैक्स्ड है ना मेरा एब्डोमेन रिलैक्स्ड है मेरा चेस्ट रिलैक्स है मेरा नेक रिलैक्स्ड है मेरा हेड रिलैक्स्ड है और सिर्फ गहरी लंबी सांसें लो पेट से जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग शुरू करते हैं हम अपने आप सैट्स में चले जाते हैं विच इज स्टेट अकिन टू स्लीप यानी कि थीटा स्टेट में और उस वक्त अपने आप को लगातार ये बोलती थी तो अब इनका क्या था कि इनका कोई लॉ सूट चल रहा था इनके हस्बैंड की इनके साथ दूसरी शादी हुई हुई थी पहली शादी से जो बच्चे थे और इनके हस्बैंड ने सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी थी है ना तो जो बच्चे थे प्रीवियस मैरिज से उन्होंने केस कर दिया था कि उनको ये प्रॉपर्टी चाहिए थी तो इनके मन में ऐसा कोई लालच नहीं था कि सब मुझे मिल जाए इट वॉज नॉट आउट ऑफ ग्रीड इन्होंने प्रे किया दैट ये जो लॉ सूट चल रहा था जो केस चल रहा था कि इट इज फिनिश्ड इन द डिवाइन ऑर्डर इनको ये नहीं था मेरे नाम से ये हो जाए है ना ये बोल रही थी बस इट इज फिनिश्ड है ना जो भगवान की रजा है उस हिसाब से ये फिनिश हो जाए ये केस खत्म हो जाए और रोज रात को 10 दिन इन्होंने लगातार सिर्फ यही सेंटेंस बोला सेम सेंटेंस स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जाके अपने आप को बोलती रही इट इज फिनिश्ड इन द डिवाइन ऑर्डर ओवर एंड ओवर अगेन एंड अपने अंदर वो फीलिंग जनरेट करती थी कि पीस एंड काम की कि बहुत आराम से ये चला गया उसके बाद वो सो जाती थी इन्होंने 10 दिन ऐसा किया 11वें दिन जब ये उठी तो मतलब वो सारी पार्टीज जो इन्वॉल्व थी पार्टीज कौन सी थी बच्चे पिछली शादी से और इनके सब लोगों ने ये डिसाइड किया दैट लाइक वो दे आर ऑल विलिंग टू सेटल इट पहले तो कह रहे थे कि सारा हमारा होना चाहिए है ना लेकिन बाद में उन्होंने कहा बहुत हारमोनियसली वी आर विलिंग टू सेटल और जो अपोजिंग अटॉर्नी थे वो खुद आए जो उनके लॉयर थे है ना पहले जो बच्चे थे उनके लॉयर्स थे वो आए और उन्होंने इनसे बात की उन्होंने बोला कि चलो हम सेटल करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से एक हारमोनियस अग्रीमेंट हुआ है ना और वो केस क्लोज हो गया और जिनको जिनका हिस्सा बहुत अच्छी तरीके से मिलना था उनको मिल गया तो ये देखो पहले अगर वो ये सोचती कि देखो वो केस कर रहे हैं मेरे नाम से प्रॉपर्टी की है मेरी क्या गलती है ये किया है वो किया है पहले तो ऐसा था वो तो मेरे साथ रहते थे उनकी सेवा आखिरी दिन तक तो मैंने करी है ना एक ये भी नजरिया होता है और ये क्या होता है कि बहुत डिवाइन तरीके से सब सेटल हो गया मतलब भगवान की रजा से डिवाइन का मतलब ये होता है कि जो गॉड की जो विल है उस हिसाब से भगवान की रजा से वो बहुत अच्छे से इट इज फिनिश्ड इन द डिवाइन ऑर्डर ओके सो ये चीज लगातार बोल बोल के आप देखो डिवाइन ऑर्डर मतलब भगवान की ही रजा थी ठीक है उनका भी हक था बच्चे तो थे ना उनके वो पहले से
तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो पहले नहीं मान रहे थे, अब किस तरह से इतनी आराम से मान लिया और ये सारा डिस्प्यूट सेटल हो गया बहुत आराम से। तो ये बुडाउ टेक्निक होती है जिसमें आप अपने आप को स्लीपी अल्फा स्टेट में लेके जाते हो और एक ही सेंटेंस आप बार 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 उसको बोलते रहते हो, है ना। लेकिन फिर ट्रस्ट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बीच, ये चीज डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने नहीं लिखी है जो मैं बता रही हूँ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे मतलब ये कर लिया टेक्निक सुबह और शाम को और पूरे दिन कैसे होगा, कब होगा, देखो कैसे है उनके बच्चे, मेरे नाम से किया, ये नहीं किया, ये सब नहीं होना चाहिए। जब आप पीस में, सेटलमेंट में, तो आपको डिवाइन ऑर्डर पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अब सरेंडर करो, ठीक है। ये नहीं उसी बारे में सोच रहे हो, उसी बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हो नहीं रहा, 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 और फिर शाम को बैठ के एफर्मेशन कर रहे हो +1 -1 = 0, तो आप 0 पे ही खड़े रहोगे अगर ऐसा होगा, है ना। तो अगर कोई एफर्मेशन कर रहे हो दैट आई एम फीलिंग better and better, my health is getting better and better every day, my health is feeling better and better every day, एंड तो आपको ये करना होगा। फिर वो 10 लोगों से अपनी बीमारी की बात मत करो, आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर ऑन अ डेली बेसिस, एंड देन कभी भी कोई थॉट आए तो आप बोलो दैट आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर। सो इस तरह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम यही होती है कि ठीक है एफर्मेशन के टाइम ठीक है ये वाला एफर्मेशन कर लिया, उसके बाद पूरे दिन वरी चलती रहती है, वरी चलती रहती है, वरी चलती रहती है। तभी मैं बोलती हूँ जो चाहिए उसको 100 बार लिखो, है ना, 100 बार लिखो तो कम से कम वो 30 मिनट के लिए तो कुछ तो न्यूरल प्रोग्रामिंग हो जाएगी ना हमारे दिमाग में। मतलब लगातार अगर 30 मिनट्स लगते हैं करीब एक सेंटेंस को 100 टाइम्स लिखने में, तो जब ये लिखेंगे तो हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत इफेक्टिवली होती है उसकी वजह से। सो इसीलिए बीइंग इन दैट गुड जोन एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट और नेगेटिव चीजें, ये बहुत जरूरी होता है। सबकॉन्शियस माइंड क्रिएशन के लिए है, हाँ अग्रीड, वो वहां पे पास्ट आपके एक्सपीरियंसेस पिछले जन्म के, इस जन्म के स्टोर्ड है, ठीक है, बट ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट वॉल एंड मूव ऑन बहुत जरूरी होता है ना। क्रिएशन का करो, सर्वाइवल मोड में अगर हम रहेंगे कि उसने मुझे ये कहा था, उसने कहा था, तो कहा था, थैंक गॉड कहा था कि आप कम से कम इस जर्नी में आए जहां पे आपको इंपॉर्टेंस पता लगी कि मैं अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें क्रिएट कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ, है ना। दैट इज हाउ इट इज। तो हमारा एमएबीजी का वो टैगलाइन है, क्रिएट द लाइफ यू लव। सो यू हैव टू क्रिएट द लाइफ यू लव। हमको सर्वाइवल मोड में नहीं रहना है कि ठीक है ये हुआ वो हुआ, पास्ट एक्सपीरियंसेस थे किसी रीजन से, क्योंकि हम उसी इमोशनल लेवल में ड्वेल कर रहे थे। अब हमको अपना इमोशनल स्केल चेंज करना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा कि हम फ्यूचर प्रेजेंस में रहें जो हम चाहते हैं, और बहुत कंफर्टेबल हों जो है अभी उसके साथ में, और एक्साइटेड रहें कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, और उसके बारे में सोचें और बात करें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बात करना, कोई पीछे की बात कर रहा है, ये हुआ हुआ, हाँ अगर बहुत अच्छी चीज है या हम वहां गए, हमने ये किया, हमने वो किया, तब फिर भी ठीक है। बट ये हो गया, ये है, वरी की फीलिंग, दिस कांस्टेंट वरी, कांस्टेंट फेयर पीछे से आता है, आप कैसे क्रिएट करोगे वैसे जोन में, है ना। एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी चाहिए कि पट 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 क्रिएट करो। टाइम और स्पेस इन द रेल्म ऑफ यूनिवर्स होता नहीं है, वो हमारे मेंटल ब्लॉक के कारण होता है कि टाइम लगता है, या कुछ चीजों में कुछ कुछ इधर उधर, इट टेक्स पैसेज ऑफ टाइम, है ना। खूब सारा लव देके आप ड्रेंच कर दो अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को, लव की फ्रीक्वेंसी में ड्रेंच कर दो, ऐसा है ना कि भीग गए पूरी तरह से, ड्रेंच हो गए पानी में, इतनी बारिश थी, तो वो बारिश किसकी होगी, लव, और उसके ड्रेंच हो जाओ उसमें, ड्रेंच योर सेल्फ इन ग्रैटिट्यूड एंड एक्साइटमेंट, नो मैटर वॉट हैपेंड इन द पास्ट। आई कैन गारंटी यू दैट आपकी जिंदगी में ऐसे सरियल, मिस्टिकल, मैजिकल एक्सपीरियंसेस होने लग जाएंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा दैट हाउ इज दिस हैपनिंग। And again, people who are in their 60s, 70s, 80s, 90s, keep telling yourself, this is the golden era of my life. और मेरे moments, मेरे experiences इतनी सुंदर हो रही हैं अभी। बिल्कुल ये मत सोचो कि बच्चे नहीं है या बाहर रहते हैं या उनकी शादी हो गई, उनके लिए टाइम नहीं है। आप अपने आप को लगातार बोलते रहो, दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ एंड आई एम लिविंग माई लाइफ एवरी डे लाइक अ सेलिब्रेशन। एक जश्न होता, ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी है और ये गोल्डन फेज है मेरा जिंदगी का।
एंड देन यू वॉच आउट फॉर आपकी हेल्थ डिसिपेट होने लग जाएगी, कुछ अगर इश्यूज होंगे, बिकॉज एक एक सेल आपकी बॉडी का रिस्पॉन्ड कर रहा होता है. We are not like, you know, that what is happening with us is we are responding to our thoughts. हमारे बॉडी लगातार रिस्पॉन्ड कर रही होती है, तो आप उसका भी रिस्पॉन्स होते हुए देखोगे अपनी जिंदगी में. ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव टुडे. सो